Good morning, class. From today, we are going to start chapter 6 of your history book, which is about towns, traders, and craft persons. In this chapter, we will be covering main towns temple towns, administrative towns, commercial towns, port towns. We will understand and take example of these various kind of towns. What was the importance of these temple towns or pilgrimage centers, how the network of small town was working, and then we will focus on traders. What are the different kind of trading communities which were available in ancient India, and what kind of goods they were indulged into. Then the last topic of our concentration will be craft persons, and we will take examples, case study of two towns like Surat and Masulipatam, and then we will gradually see how the new towns start coming into the picture, and what was the changes which the traders went through. So let's begin the chapter. And on page number 75, you will see the main townships which were present at that particular time. Map 1 says some important centers of trade and artisanal production in central and south India. So you can see Vrindavan. Vrindavan is a temple town. Then Pushkar, again a temple town. Ajmer, it was famous for Dargah of Chishti ji. And then Ahmedabad. Somnath is a temple town. Ahmedabad. Surat, port towns. Calcutta, port town. Then Masulipatam. So different type of towns were there. Some of these were famous for their temples. Some were ports, town. And let's see how these towns were important and what special features they have, what distinguished feature they have from each other. एक दूसरे से किस तरह से ये टाउन्स अलग होते थे और क्यों इम्पोर्टेंट थे, क्या इम्पोर्टेंस थी इनके इतिहास के अंदर. So let's begin with administrative centers. You read about the Chola dynasty in chapter 2. Let's travel in our imagination to Thanjavur, the capital of the Cholas, as it was 1,000 years ago. थंजावुर में हम चल रहे हैं जो कि चोलास की कैपिटल थी. अंडरलाइन कर लीजिए, आपको ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है. नेम द कैपिटल ऑफ द चोलास. सो थंजावुर. द पेरिनियल रिवर Kaveri flows near this beautiful town. One hears the bells of the Raja Rajeshwara temple built by King Raja Raja Chola. हमने ये लास्ट चैप्टर में भी फैक्ट पढ़ा था जब हमने राजा राजेश्वरम टेम्पल के बारे में पढ़ा था कि इट वाज अ टेम्पल विच वाज क्रिएटेड बाय built by Raja Chola. Okay. The town's people are all praised for its architect Kunjara Mallan Raja Perunathachakan, who was proudly carved his name on the temple wall. Inside is a massive Shivlinga. Besides the temple, there are palaces with mandapas or pavilions. King hold court in these mandapas, issuing orders to their subordinates. There are also barracks for the army. तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर यानी कि जहाँ पर राजकीय कार्य होता था वो चीज वहाँ बताया गया, और इसमें ये भी बताया गया है कि इसी शहर के अंदर राजा राजेश्वर टेम्पल भी था जो कि किंग राजा राजा ने चोला ने बनवाया था. और इसके आर्किटेक्ट जो थे कुंजर मलन राजा राज पेरुंथचन, उनके भी बहुत प्रेज है और उनके नाम इस मंदिर की दीवारों पर क्रेव्ड आउट भी किए गए हैं, यानी खोदे भी गए हुए हैं. तभी हमें पता लग रहा है कि ये उनके आर्किटेक्ट का नाम था. और ये टेम्पल शिव जी को डेडिकेटेड है. अंदर एक बहुत बड़े शिवलिंग की स्थापना हुई थी. बिसाइड द टेम्पल्स, इस टेम्पल के आसपास महल भी थे. उन महलों में मंडप थे और इन्हीं मंडपों में जो राजा था अपना दरबार लगाता था और अपने इश्यूज देता था. एक तरह से इस टेम्पल के अंदर आर्मी का भी जिक्र आता कि बैरक्स फॉर द आर्मी, आर्मी भी मेंटेन की गई थी. दिस टाउन इज ब्रस्टलिंग विद मार्केट,
सेलिंग ग्रेन्स, स्पाइसेस, क्लोथ एंड ज्वेलरी, यानी कि ये एक ऐसा टाउन है जिसमें टेम्पल भी है, जिसमें किंग रह रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी हो रहा है, प्लस यहाँ पर मार्केट्स भी थी. सो इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रेडिंग टाउन ऑल्सो. ट्रेडिंग भी हो रही है. वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम वेल एंड टैंक्स, यानी कि नगर के अंदर पानी को स्टोर करने के लिए कुएं और टैंक्स का अच्छा खासा प्रोविजन था. The Celia weavers of Thanjavur and the nearby town of Uriyur are busy producing cloth for flags to be used in the temple festival. Fine cottons for the kings and nobility and coarse cotton for the masses. देखिए क्लास डिफरेंशिएशन बता दिया कि जो राजा और नोबेलिटी है दे वर यूजिंग फाइन कॉटन यूज कर रहे थे अपनी क्लोथिंग के अंदर, जबकि जो नॉर्मल लोग हैं, कॉमन मासेस हैं, वो कॉरेस कॉटन यानी कि जो थोड़ा रफ कॉटन होता है वो है. क्लास डिफरेंस भी पता लग रहा है इसके अंदर कि मतलब लोगों की जो डिफरेंस था उनके स्टेटस के अकॉर्डिंगली, उनके रिचनेस के अकॉर्डिंगली, उनके क्लोथिंग में भी डिफरेंस था. राइट और ये जो यहाँ के जो टाउन के ये जो सेलियर वीवर्स हैं तंजावुर के, ये बेसिकली मंदिरों के लिए जो झंडे बनते हैं या मंदिरों के जो फ्लैग बनते थे उसके लिए कपड़ा वो वीव करते थे. सम डिस्टेंस अवे एट Swami Malai, the Sthapatis or sculptures are making exquisite bronze idols and tall ornament bell metal lamps. तो वो बता रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्थापतीज जो थे वो क्या बनाते थे ब्रॉन्ज के. ब्रॉन्ज एक्चुअली क्या होता है, इट्स अ कॉम्पोजिशन ऑफ टिन एंड कॉपर, राइट. और ये जो टॉल बेल मेटल बनाते हैं, लैंप्स बनाते हैं, ये बेल मेटल क्या होता है जिसके अंदर साउंड आती है, बेल जैसी घंटी की आवाज आती है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो भी कॉम्पोजिशन तो टिन और कॉपर का होता है, लेकिन टिन बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से इकोइंग होती है, राइट. तो वो इस काम में इंडल्ज थी. सो टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिम सेंटर. अभी हमने एक ऐसा टाउन देखा जिसमें टेम्पल भी था, एडमिनिस्ट्रेशन भी हो रही थी, प्लस ट्रेडिंग भी हो रही थी, यानी कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लरिशिंग और यू कैन से मोस्ट डेवलप्ड काइंड ऑफ टाइप ऑफ टाउन at that point of time. It was having very vast, very beautiful, and I tell you, Tanjavur is one of the most beautiful temple which is there in India. Architect is marvelous. इससे पहले भी हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे उसके ऊपर 1000 टन्स का जो है वो ग्रेनाइट पत्थर है, तो क्या और वो इतनी हाइट पे है कि उसके लिए उन्होंने रैंप बना के और एलिफेंट्स की मदद से इतने हैवी स्टोन को जो टॉप है, शिखरा है, वहां पर प्लेस किया था. तो दिस टेम्पल इज अ मार्वेलस एग्जाम्पल of ancient Indian architecture. You must know there are many videos available on YouTube. If you have time and you want to know in detail about this particular temple, just do watch that video. It will be a great, it will enrich you. It will make you aware of your history. ओके, तो नेक्स्ट लेट्स कम टू टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर, यानी कि टेम्पल टाउन के साथ धार्मिक स्थान. ऑब्वियसली जहाँ टेम्पल है, आप आज भी हम देखते हैं जो टेम्पल्स हैं हम लोग वहाँ विजिट करने जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, तो वो पिलग्रिमेज सेंटर्स ही हैं, तीर्थ स्थान जिनको हम बोलते हैं वो ही हैं. थंजावुर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन. टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन. व्हाट इज अर्बनाइजेशन? This is a very important terminology in this social science. In this study of society, what we need to understand, urbanization क्या होता है, जब गांव के लोग जो हैं शहरों की तरफ, शहर में बसाव करते हैं, टाउनशिप में आते हैं. पहले स्कैंटली विलेजेस में बहुत रिमोटली लोग होते थे, लेकिन ये जो टाउन्स थे ये क्योंकि बिकॉज दीज वर ब्रस्टिंग विद एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, डेवलपमेंट, तो लोग दे टेंड टू मूव टू दिस प्लेस. और आज भी ऐसा होता है, गांव से शहर की तरफ लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, वहाँ पर आपका बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट, तो इसीलिए जाते हैं. तो दिस इज अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन इज अ प्रोसेस व्हेन द पॉपुलेशन फ्रॉम अ रूरल एरिया टेंड टू मूव्स टू like a developed town and or an urban area. एक ऐसी dwelling जहाँ पर ज्यादातर लोग जो होते हैं वो मोस्टली मेल पॉपुलेशन होती है, 70% एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं होती.
ऐसे एरिया को हम अर्बन एरिया बोलते हैं। और जब गांव से लोग ऐसे एरियाज में आते हैं जहाँ का प्राइम एक्टिविटी एग्रीकल्चर नहीं है, इंडस्ट्रियल कुछ बेस है, उसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे कि these temple town represent a very important pattern of urbanization, the process by which cities develop. Temples were often central to the economy and society. क्यों? एक तो इम्पोर्टेंट है, उनकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है टेम्पल की, इसलिए वो सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, वो बहुत बड़े इकोनॉमिकल सेंटर है। एक मंदिर होता है, आप जाते हो, जब भी हम एक मंदिर या ऐसी कोई सी दरगाह ऐसी जगह पे जाना शुरू करते हैं तो 1 किलोमीटर पहले से ही दुकानें लगी होती हैं। प्रसाद ले लो, चुन्नी ले लो, नारियल ले लो, फूल ले लो। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ अपॉर्चुनिटी ऑफ पीपल टू अर्न देयर लाइवलीहुड. They are doing this, they are doing their business, they are earning money from that place. फूल बेचना, ये मोमबत्ती बेचना, ये चादरें बेचना, ये क्या है? ये ट्रेडिंग ही तो है। कोई मस्जिद के बाहर बैठा है, कोई चर्च के बाहर बैठा है, तो दे आर लाइक अर्निंग मनी। तो जहाँ अर्निंग मनी आ जाता है वो इकोनॉमी की बात हो जाती है। दीज टेम्पल टाउन्स वर अ ग्रेट सेंटर, economical activities happening over there. So these temples were very important for economy also and for society also. सोसाइटी इसलिए इम्पोर्टेंट है टेम्पल्स क्योंकि आपस में हर धर्म जो है वो भाईचारे को और एकता के लिए प्रचार करता है। और सोसाइटी का मकसद क्या है? टू मेक पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर एंड लिव हार्मोनियसली। तो टेम्पल्स उस तरह भी सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं, right? So this is why these temples are important from the point of view of economy and society. Rulers built temples to demonstrate their devotion to various deities. Number 1, अपनी devotion दिखाते थे कि वो कितने बड़े भक्त हैं। Secondly, आपने पढ़ा they also endow temples with grants of land, money and carry out elaborate rituals, feed pilgrims and priests and celebrate festivals. ये सब करते थे ना वो जो राजा होते थे, वो ये सब दान धर्म जगह देना अपना एक स्टेटस के लिए भी करते थे। हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। पिलग्रिम्स हु फ्लॉक टू द टेम्पल्स आल्सो मेड डोनेशन। अब जो लोग आते हैं दूर दराज से, वो भी हम टेम्पल जाते हैं तो कुछ ना कुछ भेंट चढ़ाते हैं ना मंदिर में, ऐसे ही वहां पर भी उस टाइम पे भी लोग जो थे वो गिफ्ट्स जो थे वो डाल देते थे। अब क्या होता था, जो इतना सारा पैसा मंदिर के पास इकट्ठा हो गया, मंदिर की डेवलपमेंट भी होती थी। आज भी हम देखते हैं ना क्या करते हैं, टेम्पल की कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, उससे लंगर भी चलाते हैं, है ना। सो द टेम्पल अथॉरिटी यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। ये क्या करते थे? ट्रेड और बैंकिंग के लिए फाइनेंस करते थे, मनी को मल्टीप्लाई करने हैं। देखो इकोनॉमिक सेंटर कैसे है टेम्पल, ठीक है ना। इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंटरवेंस हो गया ना, क्योंकि वो उस पैसे से बिजनेस भी कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, वर्कर्स, artisans, traders, etc. settled near the temple to cater its need and those of the pilgrims. धार्मिक लोगों की जरूरत भी पूरी कर रहे हैं धर्म के हिसाब से भी, और उनको काम प्रोवाइड करके उनको यहाँ पर पैसे की भी बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। तो ये पैराग्राफ की ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेम्पल्स किस तरह से जो थे इकोनॉमी को भी गवर्न करते थे, उसमें ये चीज आपको आएंगी। सो अंडरलाइन दीज लाइंस। Thus grew टेम्पल टाउन्स, और इस तरह से टेम्पल टाउन्स बने। अब क्यों इन्वेडर्स हमेशा टेम्पल टाउन्स पे अटैक करते थे, यहाँ ज्यादा क्लियर होगा आपको। टाउन्स emerged around temples such as those of बिलसा और विदिशा इन मध्य प्रदेश एंड सोमनाथ इन गुजरात। कितनी बार अटैक किया सोमनाथ टेम्पल के ऊपर और उसकी वेल्थ को लूट के गए, क्योंकि इकोनॉमी थी यहाँ पर, पैसा था, तो इसी वजह से अट्रैक्ट होते थे, उसी वजह से अटैक करते थे, राइट। Other important temple town included Kanchipuram and Madurai in Tamil Nadu and Tirupati in Andhra Pradesh. और तिरुपति ये जो नाम लिए जा रहे हैं कि आज in present time in contemporary India also these temples are having very importance, और economically भी ये इतने rich temples हैं, कितना चढ़ावा आता है दिन का वहां पर। कभी आप इस चीज को सर्च करके देखो। तिरुपति बालाजी जो है वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट टेम्पल्स में से है तिरुपति बालाजी, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। Pilgrimage centers also slowly developed into township.
जो ये धार्मिक स्थल से धीरे धीरे ये भी टाउन्स में बदलते थे। वृंदावन उत्तर प्रदेश में जो भगवान कृष्ण के साथ संबंधित है, एंड तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु आर एग्जाम्पल ऑफ 2 सच टाउन्स। अजमेर राजस्थान में जो है, जो चौहान्स की कैपिटल थी 12th सेंचुरी में, लेटर ऑन वो सूबा बन गया था मुगल्स का। It provides an excellent example of religious coexistence. Religious coexistence मतलब दो धर्म की चीजें यहाँ पर बहुत अच्छे से पाई जाती हैं। अजमेर जो है दरगाह शरीफ के लिए अपनी जो था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए बहुत फेमस है। The celebrated Sufi sant थे who settled there in 12th century, attracted devotees from all creed. Near Ajmer is a lake, पुष्कर लेक, जो कि भगवान कहते हैं ब्रह्मा को समर्पित हिंदुस्तान में कुछ ही टेम्पल्स हैं, एक आधा टेम्पल है और वो यहाँ पर पुष्कर में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो वर्ड आया है, द वर्ड विच सेज रिलीजियस को एग्जिस्टेंस, इट मीन्स दैट Hindu temple and Muslim pilgrim center was there in Ajmer. So these are some of the very important temples, towns, और इनके बारे में आपको ये बहुत वो करना है। आई हैव लाइक स्किप्ड वन थिंग, ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज लॉस्ट वैक्स टेक्निक आपको पूछा जा सकता है, एंड दिस इज ऑन पेज नंबर 77 इन द बुक आई एम हैविंग, एंड लेट्स रीड आउट दिस थिंग एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स याद रखिएगा नाम। आई विल एक्सप्लेन दिस। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टिन। अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रॉन्ज कॉपर और टिन के कॉम्बिनेशन से बनने वाला एक मेटल है। बेल मेटल कंटेन्स अ ग्रेटर प्रोपोजिशन ऑफ टिन देन अदर काइंड्स ऑफ ब्रॉन्ज, दिस प्रोड्यूस अ बेल लाइक साउंड। ये भी मैंने अभी आपको बताया कि टिन की जब मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वो एक घंटी की तरह साउंड करता है, जो बंदर जैसी घंटी की आवाज करता है। इसी वजह से इसको बेल लाइक साउंड जो है, सॉरी, इसको बेल मेटल बोला जाता है। चौला ब्रॉन्ज स्टैच्यूज, ये देखिए चौला के टाइम पे बना हुआ ब्रॉन्ज स्टैच्यू है जो कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बना होता है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस लॉस्ट वैक्स टेक्निक इज। फर्स्ट एन इमेज वॉज मेड ऑफ वैक्स। वैक्स समझते हैं ना, मोम जो होता है जिससे कैंडल्स बनती है। एक आप स्कल्पचर बनाते थे, एक मूर्ति बनाई जाती थी जो कि वैक्स की होती थी, मोम की होती थी। दिस वॉज देन कवर्ड विथ क्ले, फिर उसको क्ले से, मिट्टी से, क्ले यू नो ना, जो कि स्टैचूज बनाने के काम आती है, उसको क्ले से, उसके ऊपर क्ले की लेयर चढ़ा के उसको बना लिया जाता था। अब क्या होता था, और उसको फिर हीट किया जाता था। जब उसको हीट किया जाता था तो ये जो क्ले होती थी ये हार्ड हो जाती थी, एक शेप, पक्की शेप ले लेती थी। जब वो पक्की शेप ले लेती थी तो दे मेक अ होल, दे यूज्ड टू मेक अ होल एट द बॉटम ऑफ दैट स्टैच्यू। और जब होल बनाएंगे, इतनी हीट से निकालेंगे, तो जो अंदर वैक्स थी जिसके ऊपर ये क्ले की कोटिंग थी, दिस क्ले गॉट हार्डन्ड एंड द वैक्स विच वाज देयर इट गॉट मेल्टेड, एंड थ्रू दैट होल दे टेक आउट दैट वैक्स, उसको बाहर निकाल दिया जाता था। द मोल्टन वैक्स वाज ड्रेन आउट थ्रू दिस होल, ओके। देन मोल्टन मेटल वाज पोर्ड इनटू द क्ले मोल्ड। इस क्ले मोल्ड के अंदर वैक्स निकाल के मेटल को आप लिक्विफाइड करके, उसको बिल्कुल गर्म करके पिघला के, और वो उसके अंदर डाल दिया जाता था। और फिर उसको मेटल को जब कूल हो जाता था, जब वो सॉलिड हो जाता था, एक ठोस आकार ले लेता था, तो फिर उस क्ले कवर को वो केयरफुली रिमूव कर देते थे, ऊपर से उस क्ले को तोड़ के अलग कर देते थे, एंड द इमेज वाज क्लीन एंड पॉलिश। फिर वो जो मेटल आता था उसको क्लीन किया जाता था, उसको पॉलिश किया जाता था। ये देख रहे हैं आप, जो इतना सुंदर ये जो स्कल्पचर इस पेज पे दिखाया गया है, इसमें फिगर 1 में दिखाया गया है, अ ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ कृष्णा सबड्यूइंग द सर्पेंट कालिया। ये जो कृष्ण जी और कालिया नाग का जो युद्ध था उसको दिखाते हुए द स्कल्पचर इज देयर। और ये स्कल्पचर बना हुआ आपका लॉस्ट वैक्स टेक्निक से, यानी पहले वैक्स से बनाया गया, इसे मोम से बनाया गया, फिर इसके ऊपर क्ले की कोटिंग की गई, फिर वो क्ले को हीटन करके उसको फिक्स शेप दी गई और वैक्स को बाहर निकाल लिया गया, और बाद में ये मेटल उस चीज के अंदर डाला गया। इस तरह से ये स्टैच्यू जो बना है। सो दिस लॉस्ट वैक्स टेक्निक इज वेरी इम्पोर्टेंट। इसको आपने समझना है और याद करना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आ सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट इज द नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स।
From the 8th century onwards, the subcontinent was dotted with several small towns. वो कह रहा है जब 8th century आई तो ये subcontinent here is India. सबकॉन्टिनेंट इंडिया तो जो था उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स आ गए. These probably emerged from larger villages. They usually had a mandipika और मंडी, जो मंडी लगती थी सामान बेचने के लिए, टू विच नियर बाय विलेजर्स ब्रॉट देयर प्रोड्यूस टू सेल. आजकल हम इसे मंडी भी बोल देते हैं, सब्जी मंडी और फल मंडी होती है ना, तो वो क्या बोलते थे उसको, मंडपिका बोलते थे. और जो आसपास के विलेजर्स थे अपना सामान वहां बेचने के लिए ले आते थे. दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट्स कॉल्ड हाट. मार्केट्स लगती है ना, कई बार गलियों में मार्केट्स लगती हैं, कई बार वेडनेसडे मार्केट, फ्राइडे मार्केट, सैटरडे मार्केट्स बहुत सारी सिटीज में लगती हैं. ऐसे उनके भी उस टाइम पे गलियों में मार्केट लगती थी, उसको वो हाट बोलते थे. Lined with shop. Besides, there were streets for different kind of artisans such as potters, oil pressers, sugar maker, toddy maker, smiths, स्टोन मैसन्स एक्सेट्रा. यानी कि पर्टिकुलर स्ट्रीट्स थी जो पर्टिकुलर वर्क को डेडिकेटेड होती थी, जो कि मतलब बहुत सारे आपको हर तरह का वहां पर मटका बनाने वाला, तेल निकालने वाला, चीनी बनाने वाला, शराब बनाने वाला या पत्थर का काम करने वाले आपको मजदूर मिल जाते थे. वाइल सम ट्रेडर्स लिव इन द टाउन, अदर ट्रेवल्स फ्रॉम टाउन टू टाउन. काम की तलाश में कुछ लोग इधर इस गांव से उस गांव घूमते रहते थे, जहां काम मिल जाता था वहीं पे वो अपना काम जो कर लेते थे. मैनी केम फ्रॉम far and near to these towns to buy local articles and sell products of distant places like horses, salt, camphor, saffron, betel nut and spices like pepper. Usually a samanta or in later times a zamindar built a fortified palace in or near these towns. They levied taxes on traders, artisans and article of trade and sometimes donated the right to collect these taxes to local temples which had been built by themselves or by rich merchants. These rights were recorded in inscription that have survived to this day. इतनी नॉलेज कहाँ से मिलती है? जो इंस्क्रिप्शंस थी जो वहां पर खोद दी गई थी, जो वहां पर लिख दिया जाता है, उससे हमें पता लगा. तो आप देख रहे हैं कैसे स्मॉल टाउन नेटवर्क्स थे और उनके अंदर समंतास थे, जो कि जमीन जिनके पास होती थी ना, जमीन के जो ऑनर होते थे उनको जमींदार या समंतास, पहले समंतास बोला जाता था, लेटर ऑन दे वर यूज्ड टू कॉल एज जमींदार्स. ठीक है. और आपको पता लग गया कि एक जो स्मॉल टाउन था उसके अंदर भी बहुत सारे जो काम थे वो होते थे. राइट. आई थिंक दिस मच वी नीड टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. नेक्स्ट आई विल बी टेकिंग अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो in today's doubt class I will be taking up your doubts. Meanwhile, what is required, your reading of the chapter is required, noting down of your doubts is required, so that we can carry on with the doubt class. That is all in this video. Next half of the chapter we will be covering in the next class. Bye for now.